Yes. A very good afternoon to all the delegates attending this session. Myself, Dr. Sangeeta Pillai from Bharuch, Gujarat. I warmly welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHS to this wonderful series of learning, Guru Ji Ke Saath Guruvar 2.4, which we restarted on 10th April 2025 under the guidance of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. Dr. Liaquat is the founder of PHS and he pioneered it with the vision of educating homeopaths and transforming GPs back towards homeopathy, in which he has succeeded in helping around 2,000 doctors revert back to homeopathy. We regularly organize various academic activities so we can reach maximum homeopaths who are unable to practice homeopathy confidently due to lack of proper guidance and clinical training. Ignited Minds by PHS is a pioneer platform for free homeopathic learning. It was initially started on WhatsApp and is now on Telegram. Today, around 3,000 doctors are learning daily through our Telegram group. Recently, we successfully completed a free webinar series of 100 lectures on Zoom, and all of these lectures are available on our YouTube channel, Ignited Minds by PHS. This is session number 148, and today's tagline is What Women Want Breast Health Beyond Fear. Understanding fibroadenoma, fibrocystic changes, and holistic management. We are honored to introduce our esteemed speaker, Dr. Yogesh Malhotra. Dr. Yogesh, BHMS, is a senior homeopathic physician, academician, and a medical educator from Ludhiana with over 24 years of rich clinical experience. He has been in active homeopathic practice since 2001 and is successfully running two homeopathic clinics in Ludhiana. Deeply committed to homeopathic education and academic excellence, he has been actively involved in teaching and training since 2010, conducting both offline and online academic sessions since 2013. He previously served as a reader in the Department of Community Medicine at Lord Mahavira Homeopathic Medical College and Hospital, where he played an important role in undergraduate teaching and academic mentoring. Dr. Malhotra is widely appreciated for his holistic and clinically practical approach to homeopathy, with special emphasis on case analysis, materia medica correlation, and practical decision making in day-to-day clinical practice. Through his lectures and seminars, he consistently guides students and practitioners in connecting classical homeopathic principles with real-world clinical application. I welcome you, sir. Please take over our screen. थैंक यू सबसे पहले सर को थैंक्स बुलाने के लिए और पीएचएफ के प्लेटफॉर्म से वक्त देने के लिए सर। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है आपके प्लेटफॉर्म की, दैट इज डिसिप्लिन। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है सर। जो फॉर एग्जांपल मैं भी क्लासेस जब लेता हूँ, सबसे डिफिकल्ट होता है कि उस फ्लो को मेंटेन करना। और यू आर मेंटेनिंग इट सिंस लॉन्ग, आई थिंक। मुझे नहीं लगता कभी ब्रेक आया है बीच में। सो दैट इज वेरी कमेंडेबल। और ये बहुत अच्छा और ये बहुत डिफिकल्ट है। और आई विल ये आप कह सकते हैं कि आपसे लूंगा कि मैं अपनी क्लासेस भी ऐसे ही आगे मेंटेन करके रखूं। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि पॉसिबल नहीं है, मगर मैंने देखा है कि आप ये कभी नहीं करते। आपकी आई थिंक ये लेक्चर रेगुलर होते हैं। सो थैंक्स वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक भी जो पिक किया है आपने, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कि वुमेन की हेल्थ के ऊपर, राइट। और क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो हार्मोनल सिस्टम है, फीमेल हार्मोनल सिस्टम, वो मॉड्यूलेट होता है इमोशंस के साथ, सिचुएशंस के साथ, बाकी चीजों के साथ, इवन डाइट के साथ। और प्रीवियसली व्हेन आई वाज इन द प्रैक्टिस, और मेरा सारा का सारा जो फोकस रहता था, वो फोकस रहता था उसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल जो हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, केस के ऊपर, रूब्रिक्स के ऊपर, स्टेट ऑफ द पेशेंट के ऊपर हम उस पर फोकस करते थे। एंड रिसेंटली आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस, और आप इसको ये कह सकते हैं कि विद द डेवलपमेंट ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, आई बिलीव दैट अकेला मेडिसिन रोल प्ले नहीं करता है। आप उससे कैसे बात करते हो, आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और उसके बाद आप डाइट क्या ले रहे हो, आपके लाइफ स्टाइल्स क्या हैं, वो सब चीजें कहीं ना कुछ रोल प्ले करती हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे हमने प्रीवियसली क्लासेस में डायबिटीज के बारे में डिस्कस किया। सो ऐसा ही ये भी है, राइट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइब्रोएडिनोमा। जब हम अपने वक्त में थे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन होम्योपैथिक वर्ल्ड, कि समटाइम
ड्यू टू द लैक ऑफ, आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट, जहाँ शुरू से हमें कहा जाता है कि वी हैव टू क्योर द सिक एंड नॉट द डिजीज, सो हम डिजीज की तरफ फोकस इतना नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, जहाँ इट इज बेटर टू से मैंने नहीं किया, राइट। हो सकता है आप में से सब उसको पैथोलॉजी को अच्छे से समझते हो, जानते हो, करते हो सकता है मैं, ये बेटर है कि मैं ये कहूँ कि मैंने उसको वैसे नहीं किया और उसको मैंने फोकस किया एज ए, फॉर एग्जाम्पल डिजीज मेडिसिन की स्टेट्स, रूब्रिक, की नोट्स, उसकी तरह से। पर स्लोली स्लोली आई रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, राइट। कि पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, पैथोजेनेसिस को अंडरस्टैंड करना और बॉडी के बाकी एस्पेक्ट, और हम क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, उसका भी अपना एक रोल है। तो हम क्या खा रहे हैं, डाइट कैसे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डाइट ही ठीक नहीं है, राइट, तो मैं डायबिटीज को जितना मर्जी मेडिसिन से कंट्रोल करना चाहूं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इसलिए मैंने उसको साथ में इंड्यूस करना शुरू किया कि मैं कैसे डिफरेंट एंगल से देख सकता हूँ किसी कंडीशन को। सो टुडे इसीलिए मैंने ये जो लेक्चर मैंने पिक किया, टॉपिक पिक किया, उसका मेन कारण ही यही है कि हम रूब्रिक्स तो पढ़ते हैं, हम मेडिसिन पढ़ते हैं, सो लेट्स टेक समथिंग डिफरेंट। हम कोशिश करें हम पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की, उसके थ्रू रूब्रिक्स को भी समझने की कोशिश करें, उसके थ्रू केस को भी समझने की कोशिश करें, और देखें कि डाइट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो ऑल्टर कर सकती। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज फीमेल हेल्थ में जो मेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज फाइब्रो एडिनोमास एंड फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमास। अब जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम में था तो मुझे पता ही नहीं था फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या होती है या फाइब्रिक सिस्टस कंडीशन क्या होती है। हमारे लिए सिर्फ एक ही था, दैट इज फाइब्रो एडिनोमा। सो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एक में जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें कनेक्टिव टिश्यू, जब फॉर एग्जांपल वहां पर एक सिस्ट डेवलप कर देता है, जो एक आइसोलेटेड सिस्ट होती है, अगर हम उसको पैल्पेट करेंगे नॉर्मली वो पेनलेस होती है और हार्मोनल कंडीशन से उसको कोई ऑल्टरेशन नहीं होता, समटाइम पेशेंट को पता ही नहीं लगता और एक्सीडेंटली दे केम टू नो अबाउट दिस कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, और उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज फाइब्रोसिस्टिक कंडीशन। उसमें एक आइसोलेटेड फिनोमिना नहीं है, ओवरऑल जब अगर एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट को तो वो फील होता है जैसे कि नड्यूल्स हैं छोटे छोटे अलोंग द डक्ट्स, जो डक्ट्स हैं उसके अलोंग नड्यूल्स हैं, और वो पेनफुल भी होती है। और फॉर एग्जांपल वो पेनफुल भी होती है, और जब पीरियड्स आते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जब फ्लक्चुएशन आती है, तो उसके साथ रेजोनेट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं और वो क्यों नहीं करते हैं, ये कोई ये नहीं है कि वो हम उसमें ये ले लेंगे कि फॉर एग्जांपल पेनलेसनेस कंडीशन ऑफ द पेनफुल पार्ट्स हम ये ले लें उस कंडीशन में, ऐसा नहीं है। या उसमें ओवर सेंसिटिव टू पेन ले लें, जार एग्रेवेट ले लें, ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसमें क्यों हो रहा है और उसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसी में उसका आंसर छुपा है, उसी में उसकी बाकी की मैनेजमेंट छुपी है। सो मैं आज कोशिश करूंगा कि हम मेडिसिन के बारे में कम बात करके, राइट, रूब्रिक्स के बारे में कम बात करके, ये नहीं करेंगे, नहीं, हम कम बात करके, बाकी की चीजों की कम बात करके हम बात करें उसके बारे में, जो आप इसको क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। जैसे इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, हम कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो हार्मोनी है, हम उसको कैसे सेट इन कर सकते हैं। सो नॉर्मली वी ऑल नो कि दो तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। ईस्ट्रोजन का रोल क्या होता है, वो डक्टल ग्रोथ करता है, और ब्रांच ऑफ द डक्ट्स जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैट की डेपोजिशन, उसकी साइज, शेप, कंटूर को डेवलप करना, इवन वेस्कुलरिटी को इंक्रीज करना, वो ईस्ट्रोजन का रोल है, राइट। सो जब भी फॉर एग्जांपल, इसीलिए कि फॉर यानी कि आप कह सकते हो वो जो स्ट्रोमल ग्रोथ है ब्रेस्ट की, उसके लिए ईस्ट्रोजन रियल इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और उसी से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी, स्ट्रक्चर। और वो करता क्या है कनेक्टिव टिश्यू, वो जितने भी मिल्क के डक्ट्स हैं उनको सपोर्ट देता है, राइट। जितनी भी डक्ट्स है उनको सपोर्ट देगा। और इसीलिए जब ये हाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो इसी हाई लेवल्स के कारण जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, क्यों ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो लैक्टेशन के लिए बॉडी उसको प्रिपेयर कर रही है, राइट। जस्ट लाइक दैट, प्रोजेस्ट्रॉन अनदर हार्मोन जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल का अनदर जो हार्मोन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है
ये शेप कनेक्टिव टिश्यू और कंटूर डेवलप करने में, स्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। अब इसको ऐसे लो कि ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है, पर ये उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन का। क्योंकि जो एवोलर, फॉर एग्जांपल एल्वोलियर डेवलपमेंट है, जहाँ लेब्यूल्स हैं जिन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसका सारा डेवलपमेंट इसके इसके पास है। ये ईस्ट्रोजन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट करता है ईस्ट्रोजन को, प्रिपेयर करता है सेक्रेटरी एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये रेडी करेगा उस कंडीशन में कि सो दैट कि जब बेबी आने वाला है उससे पहले पहले हम रेडी रहे। तो नेचुरली इसीलिए जब लूटियल फेज होती है मेंसेस साइकिल की, उस कंडीशन में क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड हैवीनेस रहती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब ये कम हो जाता है, जब ये कम हो जाता है, यहाँ काउंटर बैलेंस करने के लिए नहीं रहता, तो फीमेल को प्रॉब्लम आती है, राइट? उस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये काउंटर बैलेंस करता है इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन अगर हाई हो जाता है तो मेनली उसकी कंप्लेंट है, आप इसको कह सकते हो कि दैट इज द हार्मोन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पर ईस्ट्रोजन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेंस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट। ओवर प्रोलिफरेशन को ये रोकता है प्रोजेस्टेरॉन, और बैलेंस करके रखता है। और इसीलिए फॉर एग्जांपल मीनोपॉज में देखो क्या होता है, मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉल कर जाते हैं, और इसी के कारण से अट्रॉफी ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू होना शुरू हो जाता है, और जो डेंसिटी है ब्रेस्ट की वो कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्लैग हो जाएंगे, राइट? वो सारी कंडीशन आ जाती है, और मेनली देन द ब्रेस्ट इज डोमिनेटेड बाय द फैट्स, वो फैट से डोमिनेट कर जाएंगे उस कंडीशन में। तो ये तो है बेसिक जो हार्मोनल सिस्टम जो उसको रेगुलेट करता है। अब इसके अलावा और कौन से हार्मोन है देखो करते, क्यों जानने जरूरी हैं? क्योंकि इसी में आगे चीजें छुपी हुई। अनदर हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोलैक्टिन। हम सब जानते हैं कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन, और स्टिमुलेट करता है डक्ट को और लेबुलर टिश्यू को, उसको डेवलप करने के लिए। अब अगर ये प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया बॉडी में, राइट, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया, उस कंडीशन में डक्ट की ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी, ओवर उसमें इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण वो लिब्यूल्स बन जाएंगे और फाइब्रोसिस्टिक कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर हाई प्रोलैक्टिन जब पेशेंट में होएगा, तो ये फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा की कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। कब कब हो सकता है? समटाइम पेशेंट इज अंडर द डिप्रेशन और अंडर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। थायराइड इनबैलेंस, उस कंडीशन में ये बढ़ जाएगी। हार्मोनल इनबैलेंस, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसको हमें रूल आउट करना चाहिए, दैट इज पिट्यूटरी ट्यूमर्स, उस कंडीशन में। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप सबको ध्यान देना चाहिए इस तरफ, दैट इज कॉर्टिसोल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें सुबह उठाता है, ये हमें जगाता है ये कॉर्टिसोल, और ये इंसुलिन के साथ इसका बहुत स्ट्रांग रोल है यहाँ पर। मगर कॉर्टिसोल करता क्या है? कॉर्टिसोल प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है और ईस्ट्रोजन को बढ़ाता है। सो कॉर्टिसोल, अगर आपको स्ट्रेस होएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन होएगी, तो जो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, दैट इज वो कॉर्टिसोल की वजह से होती है, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। सो जब स्ट्रेस होएगा, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, नींद डिस्टर्ब होएगी, और उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल के साथ ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कॉर्टिसोल जगाता है, तो सुलाता कौन है? हमें हमें सुलाता है मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन है। तो नॉर्मली रात को वो सिक्रीट होता है अलोंग विद द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के साथ मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, और जब वो सिक्रीट होएगा तो वो हमें स्लीप में लेके जाता है। और यहाँ पर मुझे लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए कि पेशेंट को इस समय, इस वर्ल्ड में जो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, यहाँ पर मेलाटोनिन का जो डिसफंक्शन है वो बहुत कॉमन हो गया है, और यू ऑल नो वो क्यों हो रहा है, जिसके सामने हम बैठे हुए हैं, दैट इज ए स्क्रीन। तो स्क्रीन में क्या है, राइट? अब हमें ये समझना चाहिए कि पर पहले मेलाटोनिन करेगा क्या? सो मेलाटोनिन बेसिकली इट इज एन एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। अगर मेलाटोनिन कम होएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, अगर ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो फिर फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आएंगे, राइट? तो
इनका रोल है एक। तो अगर नींद प्रॉपर नहीं आएगी, अगर मेलेटोनिन प्रॉपर नहीं होएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मेलेटोनिन देना शुरू कर देंगे। हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर नींद नहीं आती उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती, देन वी हैव टू एड्रेस दैट, कि क्यों नहीं नींद आ रही, उसके पीछे क्या कारण है, हमें अपनी मेडिसिन से उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिंपल हमने फाइब्रोसिस्टिक देखा, जाइन केस, हमने फाइब्रोएडिनोमा देखा और हमने फाइटोलैक और ये मेडिसिन के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ये दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। नो, वी हैव टू गो टू द कॉज। अगर कीनोट प्रिस्क्रिप्शन भी करनी है, अगर पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी करनी है, वो रैंडम हिट ट्रायल ट्रायल पे नहीं हो सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ से चीज ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिन फाइंड करोगे, अगर उसको एड्रेस करोगे तो ठीक होएगा, नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। अगर आपकी मेडिसिन कॉज को एड्रेस नहीं कर रही, अगर आपकी मेडिसिन पैथोजेनेसिस कवर नहीं कर रही, सपोज मेडिसिन कॉज को एड्रेस कर रही है मगर वो फाइब्रोसिस्टिक कंडीशन क्रिएट करती है, फाइब्रोएडिनोमा क्रिएट नहीं करती, वो ठीक नहीं करेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेलेटोनिन किससे ऑल्टर होता है? इट्स वेरी कॉमन, डे टू डे की ये प्रॉब्लम है। बेसिकली आप देखो कि अगर हमारी जो फॉर एग्जांपल जो फ्लेक्स साइंस बनते हैं, जहाँ जो बोर्ड बनते हैं, राइट, वो कौन से कलर में बनते हैं? नॉर्मली येलो, ब्लू और रेड। क्योंकि हमारी आईज सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से हम सेंसिटिव हैं आउट ऑफ दीज, वो ब्लू लाइट से सेंसिटिव है, क्योंकि इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है बहुत ज्यादा। और थ्रू द, जिसे आप कह सकते हो थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ द सेंचुरीज टुगेदर, हमने, जब बिल्कुल हम डेवलप हुए हैं एप के बाद, हम जैसे ह्यूमन डेवलप हुए हैं, हमने जो दिन है, जो ब्लू लाइट है स्काई की, उसको दिन के हिसाब से देखा है। सो वो चीज इन बिल्ट है हमारे में, हमारी जीन्स में है, हमारे सिस्टम में है, कि जब भी हमारा रेटिना ब्लू लाइट देखता है, तो ब्रेन उसको कैसे पिक करता है, या तो वो डे है, या देर इज सम वर्क टू डू। सो अगर आप रात को ट्राई करके देखो कि जस्ट आपने फोन ओपन किया है और आपने कुछ भी देखना शुरू किया है, उसी समय आपकी नींद चली जाती है। क्यों? अगर आप रिसर्च पढ़ोगे तो जो हमारा ब्रेन है उसमें, जैसे आप अलार्म में स्नूज लगाते हो, राइट, 5 मिनट्स का, तो ब्रेन में ऐसे ही स्नूज सिस्टम लगा है फॉर 30 मिनट्स। तो जैसे ही वो ब्रेन ब्लू लाइट देखेगा, उसी समय मेलेटोनिन स्नूज हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी फॉर 30 मिनट्स। ये उसका सिस्टम है, राइट। जब मेलेटोनिन कम होएगी तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो सेल फोन्स हैं, जो टीवी स्क्रीन, इसीलिए कहते हैं कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए और रात को आपको फोन बंद कर देना चाहिए। नहीं बंद हो सकता तो आप उसको जो नाइट मोड पर लगा दो, सो दैट उसमें ब्लू लाइट ना हो, या इन केस आप स्पेक्स यूज कर सकते हो जो ब्लू लाइट वाली होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू बेसिकली, कि beside the medicines, beside the rubrics, beside the keynotes, these small things are very important because it is shaping the personality of the person. ये उसके केमिकल ऑल्टर कर रही है। सो व्हाट आई फील और व्हाट आई अंडरस्टूड, अगर स्टेट ने सपोज, अगर अगर सीपिया है सपोज, अगर उसे में उसमें इरिटेशन पैदा करनी है स्टेट ने, तो इरिटेशन पैदा कैसे करेगी स्टेट? थ्रू केमिकल्स। अगर उसके अंदर सेरोटोनिन फ्लो कर रहा है, तो इरिटेट कैसे हो सकती है, राइट? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वाइटल फोर्स को बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स लाने के लिए उसको अपना बॉडी का सिस्टम ही यूज करना है, दैट इज केमिकल्स। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उन केमिकल्स को अंडरस्टैंड ना करें। सपोज गट हेल्थ ठीक नहीं है और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द सेरोटोनिन वो गट से बनने वाली है। तो जब आप मेडिसिन देते हो, जब आप कहते हो पेशेंट हैप्पी हो गया, आप ध्यान दो उसकी गट ठीक हुई होगी। ये नहीं हो सकता कि उसकी गट खराब है, सर्टेन प्रॉपर नहीं बन रही है और वो अच्छा फील कर रहा है, नहीं होता। इसलिए जब हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, जब पेट क्लियर नहीं होता, वी गेट इरिटेटेड, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स। ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, तो आपके पेशेंट, आपको अपने पेशेंट को गाइड करना पड़ेगा। अगर उसका ईस्ट्रोजन का इशू है, तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें तेरे को करनी पड़ेंगी लाइफ में। सो प्रोलेक्टिन, कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है नेचुरली। देन अगर वो नहीं कर पा रही है, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, इंसुलिन और प्रोड्यूस होएगी।
रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर ये इंक्रीज होती है तो इंसुलिन लेवल जब इंक्रीज रहेगा इन द बॉडी, तो आईजीएफ जो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो एक बार इसको पढ़ के देखना ये क्या करता है। जब भी ये बढ़ेगा इट प्रमोट्स एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द फाइब्रोएडिनोमा। ये फाइब्रोएडिनोमा की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिना कम किए आप फाइब्रोएडिनोमा को, जो केस आपके नहीं ठीक हो रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, जो नहीं ठीक हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर है, जिसे हम नॉर्मली ऑर्गेनन में क्या पढ़ते हैं, मेंटेनिंग कॉज। तो दीज आर द मेंटेनिंग कॉज कि उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, नेक के पीछे थिक स्किन होगी या स्किन टैग्स आ रहे हैं, राइट, सारे सिम्टम बता रहे हैं कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आप उसको उसको ठीक करेक्ट किए बिना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इन्फ्लामेटरी स्टेट बॉडी में एसिडिक कंडीशन बनाई रखेगी और साथ में वो इसको डिस्टर्ब करके रखेगी। वो आईजीएफ को, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को पुश करके रखेगी, इंक्रीज करके रखेगी, जो इंक्रीज करेगा फाइब्रोएडिनोमा को। Another thing which is very important is hypothyroidism, which is very common nowadays. मुझे लगता है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। वो भी कितने टाइप का होता है। समटाइम इट इज क्लिनिक, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल हाइपोथायराइडिज्म, जो जिसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका वेट ज्यादा है जिसके कारण बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि बॉडी देख रही है कि फैट ज्यादा है तो उसे लगता है कि इसको बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए, तो वो टीएसएच इंक्रीज कर देती है। उसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मगर उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है। तो वैसे ही अगर हाइपोथायराइडिज्म रहेगा तो वो प्रोलैक्टिन को बढ़ा के रखेगा, और अगर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा जैसे मैंने बताया, वो स्टिमुलेट करेगा डक्टल्स और लेब्यूल्स को, और फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा की कंडीशन बढ़ती ही जाएगी, वो इंक्रीज होती ही जाएगी। सो इनके बारे में जानना, इनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट जो समझने वाली बात है इस कंडीशन में, वो है इसकी फॉर एग्जांपल, अब देखो एज एज और फेज ऑफ लाइफ। अगर आपने डायग्नोसिस करना है, आपने डायग्नोस करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फाइब्रो एडिनोमा और फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा, इनकी एज का फर्क रहने वाला है पेशेंट का। मोस्टली फाइब्रो एडिनोमा जो होएगा वो 15 से 35 के बीच में होएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ईस्ट्रोजन पीक पर होएगा उस कंडीशन में। सो वहां पर टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होएगी, वो स्ट्रोमा को और ग्लैंडुलर टिश्यू को स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, जो ओवर ग्रो करेगा और स्लोली स्लोली लंप की तरह फील होएगा। और जो फॉर एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, जो लंप की तरह फील होएगा, क्योंकि वहां पर देखो क्या हो रहा है, फाइब्रो एडिनोमा में जो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या है, ब्रेन टिश्यू में जो लेब्यूल्स के साथ कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो उन लेब्यूल को सपोर्ट देके रखते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू की ओवर ग्रोथ है, प्रोलिफरेशन है वो, राइट। सो इसमें कोई भी इंफ्लामेटरी इफेक्ट नहीं है, कोई इंफ्लेमेशन नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ग्रो कर रहा है। इसीलिए हमें रेमेडीज कौन सी चाहिए, जो कनेक्टिव टिश्यू पर काम करती हो। तो यहां पर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो टिश्यू बेसिकली सेंसिटिव हो गया ईस्ट्रोजन को, इसीलिए वो प्रोलिफरेट कर रहा है उस टिश्यू में, उसके रिस्पॉन्स में। अब जो वो मास बन गया है, क्योंकि वो नॉन इन्फ्लेमेटरी है, तो वो कोई पेन नहीं करेगा, इसलिए वो पेनलेस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूब्रिक ले लोगे पेनलेसनेस ऑफ द पेनफुल कंडीशन। ये सिंपल है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। पेन इन्फ्लेमेशन के कारण होगी, रेडनेस इन्फ्लेमेशन के कारण होगी, बाकी चीजें इन्फ्लेमेशन के कारण होंगी, फीवरेश हीट वगैरह सब उसके कारण आएगा। इसलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है और ये बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये ईस्ट्रोजन से इफेक्ट होता है, यानी कि ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होता है। इसके ऊपर जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है फीमेल की ऑफ 28 डेज, कि पहले एक साइकिल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा साइकिल, इसकी फ्लक्चुएशन फाइब्रोएडिनोमा को इफेक्ट नहीं करती है। ये स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन का है। तो इसलिए उस कंडीशन में इसमें कभी भी मेंसेस रिलेटेड सिम्टम मोस्टली नहीं आते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई और कंडीशन साथ में ना हो। तो ये ऐसा नहीं है कि जब पीरियड्स आएंगे फॉर एग्जांपल तो इसकी पेन बढ़ जाएगी, हैवीनेस बढ़ जाएगी, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगी, हैवीनेस लगेगी, जैसे नॉर्मली हम लेग कैन लेग डेफ उन रेमेडीज में पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इस कंडीशन में नहीं होएगा। तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन सिस्टिक और फर्म मोबाइल मास होएगा यहाँ पर। So we have to understand that. On the contrary, fibrocystic adenoma, right? इसमें ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है। तो जब ये पेशेंट लेके आएगा, तो जो फर्स्ट कंडीशन लेके आएगा वो पेन लेके आएगा। जैसे फ्यू डेज बैक देयर इज वन वन पेशेंट, द फीमेल पेशेंट, शी केम टू मी, और उसने बोला कि लास्ट 3 ईयर से बहुत सीवियर पेन है, और इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन और सब कुछ करने के बावजूद ये मेरी पेन ठीक नहीं हो रही है, राइट। और पूरे के पूरे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ यहाँ पर है, हैवीनेस है, और फ्लक्चुएशन चलती रहती है, कभी हैवी हो जाते हैं, जार तंग करता है, अगर कोई जर्क लग गया तो पेन करेगा, हर समय डिफिकल्टी रहती है मेरे को, और कुछ भी मेरे को मैनेज करना मुश्किल हुआ है, और अब जो नॉर्मली मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें भी नहीं प्रॉपरली वर्क कर पा रही हूँ, राइट। और उसकी एज वही एज 45 की एज है उसकी। और सब ये स्टार्ट हुआ आज से 3 साल पहले, जब उसने अपनी बेटी की एडमिशन करवाई किसी कॉलेज में, और उसको हॉस्टल छोड़ के आई। और उसके बाद जब वो वापस आई तो शी वॉज इन क्राइसिस, शी वॉज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, कितने दिन उसको नींद ही नहीं आई, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब विद दैट कि क्या करें कैसे करें, कभी बेटी को ऐसे अलग किया ही नहीं था, राइट। देन स्लोली 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 दिस स्टार्ट्स, और ये तब से ये कंटिन्यूस है, चल ही रहा है, राइट। तो ऐसे पेन होएगी, ये पेन फाइब्रो एडिनोमा में नहीं हुई। तो इसकी जो फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा की एज है वो एज है 30 से 50। तो इसमें नॉर्मली इंटायर ब्रेस्ट इन्वॉल्व होएगा, डक्ट्स एंड सराउंडिंग स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के साथ डक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, और डक्ट्स सारे ब्रेस्ट में ट्रेवल कर रही है, इसलिए जो पेन है वो सभी में होएगी, और ऐसे फील होएगा जैसे बीड्स हैं। सो यहाँ पर डक्टल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसके कारण ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये इसमें मेन है। तो इसमें सारा एंटायर ब्रेस्ट अंडरगो द साइक्लिक हार्मोनल फ्लक्चुएशन। सो जब ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होएगी तो डक्टल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। मगर वाइल व्हेन डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन, अगर प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, ये उसको और भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस करके रखता है उस कंडीशन में। तो इसीलिए मीनोपॉजल एज में जब वो फॉल करना शुरू करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो क्योंकि ये साइक्लिक है, तो इसीलिए इट इज अफेक्टेड बाय द रेगुलर चेंजेस इन द, अगर हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो ये इफेक्ट होएगा, राइट। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फाइब्रोसिस होगा लॉन्ग टर्म में, तो रोप लाइक फीलिंग, फर्मनेस, डिस्कंफर्ट, ये सारा कुछ डेवलप हो जाएगा। मगर हमें मालूम होना चाहिए कि हर पेन, हर दर्द वो नहीं है। सो सम टाइम आपके पास पेशेंट आ सकता है कि जिसको आपने एग्जामिन किया और आपने देखा कि ये बिल्कुल ऐसे ही लम्प्स बने हुए हैं, एंड यू फॉरगेट टू आस्क कि क्या वो बेबी को फीड कर रही है, नहीं कर रही है, कि हो सकता है कि उसने थोड़ी देर पहले बर्थ दिया हो। तो वहां पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि हो सकता है कि वो लैक्टेशनल मेस्टाइटिस हो, क्योंकि ब्रेस्ट रेडी हो रहे हैं बेबी को फीड करने के लिए, और जब पहले पहले स्टार्ट होएगा तो वो पेनफुल होएगा, क्योंकि अभी फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। और साथ में इट इज वेरी कॉमन कि जो निपल्स है उसमें क्रैक आ जाती है, और वहां पर स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो जाती है। तो वहां पर हमें लैक्टेशनल मेस्टाइटिस के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम जैसे फॉर एग्जांपल 2-4 डेज, जब बेबी बॉर्न होता है, 3-4 दिन बाद ही तो ब्रेस्ट में इनगॉर्जमेंट आनी शुरू हो जाती है, फ्लूइड्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। कई बार फॉर एग्जांपल उसमें होना क्या, ब्लड फॉर द मिल्क, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्लड यूज होना है, तो वो पीक चले जाती है 5th डे, और 2nd वीक तक वो पूरी रहती है। और अगर तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है। सो हमें कंफ्यूज नहीं करना है इसको मेस्टाइटिस से, ये कॉमन इनगॉर्जमेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट टू प्रिस्क्राइब एंड व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब। तो एक फिजियोलॉजिकल इन्गॉर्जमेंट है, इसके लिए हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होएगी तो हम नसोड भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं, स्टेफाइलोकोकिन हम दे सकते हैं, नहीं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फाइब्रोसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। उसके बाद आता है कि इसके कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको केस में बताया कि उसकी प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई। उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब फॉर एग्जांपल वो अपनी बेटी को
छोड़ के आई। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल के हार्मोनल सिस्टम, इमोशनल, लाइफस्टाइल, उन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। आप किसी चीज को अलग नहीं कर सकते हो। सो आप इमोशंस को अलग नहीं कर सकते हो। आप कभी भी देखना, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो माएँ भी हैं, राइट, उनके बेबी होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज बेबी अंदर, घर में बहुत अंदर सो रहा है कहीं, मदर बाहर है, अगर बेबी उठ गया तो जो माँ है उसमें दूध उतर आता है, मिल्क आना शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। कौन बता रहा है उसे? उसे मालूम भी नहीं है बच्चा अंदर उठ के। देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट, जो माँ का कनेक्शन है। तो इसीलिए जैसे हम सब मैमल्स हैं और इसमें ये ब्रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो फर्स्ट कनेक्शन है बेबी के साथ। बेबी का फर्स्ट कनेक्ट उसके साथ बनता है। तो ये एक, जिसे आप बोल सकते हो कि इनबिल्ड सॉफ्टवेयर में है, क्योंकि दे आर नोन फॉर नर्चरिंग, केयर, बच्चे की केयर और नर्चरिंग। यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करके देखो। अब ये केयर नर्चरिंग सिर्फ बेबी के लिए नहीं है। अगर कोई लेडी अपने आप को मां ही समझती है, फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी, तो वो उसकी बॉडी सेम रिएक्ट करेगी, सेम रिएक्ट करेगी। सपोज अगर बेबी बीमार है, राइट, तो मिल्क ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बेबी को ज्यादा जरूरत है। और अगर सोच के देखो कि इन केस बच्चे को आईसीयू में डाल दिया क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर था, अब प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सेपरेशन का इशू आ गया, और साथ में उसको एंजाइटी आ गई, क्या होगा, कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कोई मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो लव्ड वन है वो डेंजर में। यहां पर ब्रेस्ट इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब वो बच्चा बच्चा भी हो सकता है, और वो बच्चा उसका हस्बैंड भी हो सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स नॉट अबाउट द रिलेशन, इट्स अबाउट व्हाट यू फील फॉर देम। इट्स अबाउट द बॉन्ड दे शेयर। वो बॉन्ड की बात है। हो सकता है वो जिससे, जैसे बच्चे से प्यार करती है, वही प्यार वो उसको हस्बैंड से भी है। सपोज उसका हस्बैंड बीमार हो गया, सपोज वो टीचर है और ऐसे ही प्यार उसको अपने स्टूडेंट से, वो अपने स्टूडेंट से भी ऐसे ही प्यार करती, तो वो स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही फील करेगी। सपोज इन केस उसकी स्टडीज नहीं ठीक चल रही है, या उसका स्टूडेंट बीमार हो गया, या इन केस पेट, नाउ डेज अगर पेट बीमार है, तो उसमें भी उसको वही एंग्जाइटी आ जाएगी, राइट। सपोज उसके बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है स्कूल में, उसमें भी यही आ जाएगा, उस कंडीशन में भी आ जाएगा। या उसका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है इन स्टडीज, या इन केस उसके बच्चे को बुली किया जा रहा है, या वो ड्रग्स लेने लग गया है, राइट। सो किसी भी कंडीशन में, या फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है, कोई कंडीशन है पार्टनर का, पार्टनर के केस में फाइनेंशियल इशू भी आ जाएगा, तो उसके अंदर क्या आएगा? केयर। जब वो केयर आएगी, जो ब्रेस्ट है वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करना आता है, बाय इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। तो वहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को नेस्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लेता कि ये साइंटिफिक है या नहीं है। मैं देखता हूं कि क्या मेरे केस में ये एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसकी प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई। उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब वो अपने बेबी को बाहर छोड़ के आई, सेपरेशन। तो यहां पर सेपरेशन नहीं है, यहां पर फिक्र है। जब फिक्र आ जाएगी तो इसको बोलते हैं नेस्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट। तो वहां पर ब्रेस्ट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज नाउ मोर लव इज नीडेड, मोर फीड इज नीडेड, मोर डाइट इज नीडेड। अब वो बच्चा जो बीमार है उसको ज्यादा दूध की जरूरत है, उसको ज्यादा प्यार की जरूरत है। तो हमारी जो फिजियोलॉजी है वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। जब फिजियोलॉजी उसको रिस्पॉन्ड करती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो ग्रोथ, जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो जाएगी। सो अपने केसेस में जो नहीं ठीक हुए हैं, जहां आप देखना शुरू करो कि आपको ये मिलता है कि नहीं मिलता। इट डजंट मीन कि जो मैं कह रहा हूं उसको वैसे मान लो। अब अपने केसेस में देखना शुरू करो, फाइब्रो एडिनोमा के केसेस में देखना शुरू करो। बहुत सारे केसेस में आपको ये नेस्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेगा। नेस्ट वरी मतलब मेरा घोंसला, घोंसले में बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, पर वो घोंसला बड़ा घोंसला हो सकता है, उसमें उसके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। वो बड़ा घोंसला हो सकता है जिसमें उसके पेट्स भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मतलब हर कोई जिसके लिए वो फिक्र कर रही है, जिसके लिए वो एंशियस फील कर रही है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में बॉडी रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेस्ट एज इट इज ए पार्ट ऑफ ए नर्चरिंग नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो ब्रेस्ट टिश्यू एक्टिवेट हो जाएंगे।
सो पहले फेज में जब वो स्ट्रेस चल रहा है तो वो ग्रो करेंगे, उस समय फाइब्रोएडिनोमा हो जाएगा। रिकवरी फेज में क्या हो जाएगा, वो रिग्रेस कर जाएंगे। जब रिग्रेस करेंगे तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाएगी और डिस्चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो फॉर एग्जांपल हम ध्यान नहीं देते हैं। देयर इज अ रेमेडी फाइटोलैका। फाइटोलैका का मटेरिया मेडिका पढ़ो तो उसमें देखो क्या लिखा। फाइटोलैका इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द फाइब्रोएडिनोमा, राइट साइड फाइब्रोएडिनोमास। देखो उसमें क्या लिखा है, रिड्यूल फ्रॉम एवरी इमोशन एंड एक्साइटमेंट, रिड्यूल फ्रॉम एवरी इमोशन एंड एक्साइटमेंट। लेक्यान में देखो एंजाइटी फैमिली अबाउट प्लस फुल ऑफ हार्ड लम्प्स इन द ब्रेस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन। बहुत ज्यादा एंजाइटी है फैमिली के लिए और फुल ऑफ हार्ड लम्प्स इन द ब्रेस्ट, राइट। कार्बो एनिमलिस एंड कल्केरिया सिलिकेटा, strong anxiety about the family, very strong, and they are very good remedies for this fibroadenomas. There is a remedy called placenta, अब यूज करके देखो, इसको मंगवाओ, हेलियोस से मिलेगी प्लेसेंटा। उसमें ड्रीम क्या है, देर इज एन एंशियस ड्रीम कि फॉर एग्जाम्पल देर इज ए पेनफुल लंप इन द रेस्ट ब्रेस्ट, उसको ऐसे लगता है विच सीम रियल, मगर जब वो उठती है, जब उठती है और वो उसको फील भी कर सकती है। और उसका मेन थीम क्या है, दैट इज एंजाइटी अबाउट द फैमिली एंड द फाइनेंस। क्योंकि प्लेसेंटा का मेन रोल क्या है, उसको बना के रखना, रिसोर्सेज को, सोर्सेज को पूरा बेबी को देना। तो अगर वहां कोई ऑल्टरेशन आती है तो प्रॉब्लम है। तो देर इज एन एंजाइटी हेल्थ अबाउट एंड द फैमिली एंड द फाइनेंस। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देखो फाइब्रोएडिनोमा में, ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये मिलता है तो आप उसको जरूर एड्रेस करो कि कैसे आप करोगे। सेकेंड इज ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने अपने केस में बताया। अपने केस में क्या है कि उसने अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया। सपोज हस्बैंड की डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, टॉकिंग टर्म्स नहीं रही, राइट, दूर चले गए, कहीं सेपरेट हो गए, अलग अलग रह रहे हैं 2 साल से, इसको हम कहेंगे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। या इन केस मदर को ऑफिस जाना पड़ गया, चाइल्ड बर्थ के बाद जल्दी जाना पड़ गया उस समय। नहीं तो आजकल नाउ डेज क्या होता है, जैसे फॉरेन कंट्री में जो एनआरआई हैं तो वो क्या करते हैं उस समय, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए वो जो चाहिए डे केयर वो बहुत महंगा है। वो इंडिया से किसी को बुला लेंगे पेरेंट्स को, और समटाइम पेरेंट्स कहेंगे हम इतनी देर नहीं रह सकते, वो बच्चे को साथ ले जाते हैं, बच्चा दूर चले जाता है। सेपरेशन। सो वेन एवर देर इज ए सेपरेशन फ्रॉम द पर्सन विद इन द नेस्ट, जो उसका घोंसला है, मैंने फिर बोला घोंसला बड़ा हो सकता है कि उसने रिजाइन कर दिया सपोज जॉब में से, जहां वो रिटायर हो गई है लेडी, वो रिटायर हो गई है अपनी जॉब से, अब सेपरेशन होगी उसके घोंसले से, राइट। वो भी हो सकता है। सो इट कैन बी रिटायरमेंट, इट कैन बी डेथ, राइट, इट कैन बी डाइवोर्स, इट कैन बी ब्रेकअप, नो टॉकिंग टर्म्स, एनीथिंग हो सकता है। अब इसमें उसकी पहली कंडीशन में था उसको ज्यादा चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, अब है वो रहा ही नहीं, जिसको मैंने लव केयर नर्चरिंग, जो मैंने प्यार देनी, वो रहा ही नहीं। नाउ फिजियोलॉजी कैसे पिक करती है, नाउ देर इज नो नीड फॉर द मिल्क। वहां पर जो मिल्क डक्ट है उनकी अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी फिर 2 फेज है, एक्टिव फेज और दूसरी फेज जो है। वहां पर फॉर एग्जाम्पल उस कंडीशन में, राइट, उस कंडीशन में फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा आ जाएगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसमें? डक्ट्स में। वो क्या कर रही थी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए फाइब्रोएडिनोमा। यहां पर डक्ट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि अब मिल्क की जरूरत नहीं है, मिल्क डक्ट्स की जरूरत नहीं है, उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, इसलिए फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा। सो जो मैंने आपको केस बताया उसमें फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा था, सब पेन हो रहा था, और देर इज ए स्ट्रॉन्ग केयर फॉर द गर्ल जो उसको वो छोड़ के आई है उसमें, राइट। सो रेमेडी प्रिस्क्राइब फॉर हर, जो मैंने उसको रेमेडी दी इन विद इन ए वीक। अब जो सोच के देखो 3 साल की पेन है उसको, 3 साल से, एंड शी टोल्ड मी कि विद इन ए वीक एवरीथिंग इज रिजॉल्व, इट इज टोटली सॉफ्ट। इवन मैं प्रेशर भी देती हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं है, और इन केस कोई जर्क लगता है मुझे कोई पेन नहीं है, दबाने पर भी मुझे कुछ फील नहीं होता, और वैसे भी आई एम टोटली रिलैक्स्ड। सो इतना फर्क पड़ जाता है अगर हम उसके सेंटर को समझें। अब यहाँ पर कौन सी रेमेडीज आ जाती है, मालबेस फैमिली प्लांट्स में से, स्क्रोफुलेसी फैमिली, ऑल द मैमल्स,
थर्ड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो सारी इसमें फॉल कर सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी कंसिडर करो इसमें, राइट। तो इसमें फिर आगे थोड़ा सा आ जाता है कि विच साइड ऑफ ब्रेस्ट इज इन्वॉल्व, लेफ्ट साइड और राइट साइड। वो आपने अगर डिस्कस करना है तो मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि अगर लेफ्ट साइड है इट इज फॉर द चाइल्ड एंड द मदर और एनी वन पार्ट ऑफ द नेस्ट। अगर राइट है बेसिकली इट बिलोंग्स टू द पार्टनर, राइट, विच इज नॉट कनेक्टेड बट इट इज ए पार्ट ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट है उसका पार्ट ही है वो, मतलब जो बेबी चाइल्ड हो गया, मदर बॉन्ड हो गया, जैसे मैंने बोला कि बच्चे का माँ के साथ बॉन्ड अलग नहीं है, वो सेम ही है। बच्चे को भूख लगेगी दूध उतर जाएगा, बाप के साथ उसका वो रिलेशन नहीं है। तो हस्बैंड के साथ जो है वो राइट साइड में प्रॉब्लम आएगी तो हस्बैंड के साथ आएगी। अब इसको रिजॉल्व करना, डाइट 15 मिनट रह गए, मैं उसको डाइट को डिस्कस करता हूँ। इसको रिजॉल्व करने के लिए दवा के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना, जिसके साथ उसकी प्रॉब्लम है उससे बात करवाना। सो रीबिल्ड कराना कनेक्ट को दोबारा से, कम्युनिकेशन। अगर सपोज हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन अब नहीं हो सकती, देन एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल क्लोजर ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज है उसको क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको रीश्योरेंस देना कि एवरीथिंग इज राइट, जैसे वो कहते थे ऑल इज वेल। तो उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट। डाइट क्या दोगे? अब हम तो कुछ भी खाने को बोल देंगे, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फाइब्रोएडिनोमा क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन है, तो हमें हर वो डाइट जो ईस्ट्रोजन को पुश करेगी उसको अवॉइड करना है। अब हमें कौन सी डाइट, हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन सी डाइट है जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंट फूड है। रेड मीट, फुल फैट डेयरी, ये ईस्ट्रोजन को पुश करती है। और दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी इन फिजियोलॉजी कि ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज कौन करता है? लिवर। और मेटाबोलाइज होने के बाद वो कहां जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में, वाया बाइल, राइट। जब वो वहां जाता है तो अगर आप फाइबर ज्यादा लो तो फाइबर क्या करता है? अगर डाइट में आपके फाइबर हैं तो वो दो काम करेगा। एक, वो ईस्ट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब वो बॉन्ड बनाने के कारण ईस्ट्रोजन को दोबारा से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा वो क्या करेगा? फाइबर ग्लूकोज को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो उसके कारण इंसुलिन सेंसिटिविटी का फर्क पड़ जाएगा, रेजिस्टेंस का, जो फिर दोबारा से यही काम करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिवर को स्ट्रेंथन करो, फाइबर की डाइट साथ में दो, अल्कोहल को अवॉइड करो, राइट। तो वो इंप्रूव करेगी, क्योंकि फाइबर एक तो गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में फर्क लेके आएगा क्योंकि फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फर्क आ जाएगा, और साथ में ईस्ट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। ब्लड शुगर भी कम हो जाएगी और ईस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकेंड डाइट इज फाइटो ईस्ट्रोजन डाइट। फाइटो ईस्ट्रोजन किया, फाइटो मींस प्लांट, ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन। बेसिकली ऐसी डाइट जो दिखने में केमिकली स्ट्रक्चरली बिल्कुल ईस्ट्रोजन जैसी है। अब क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल ईस्ट्रोजन जैसी है तो वो क्या करेगी? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बॉन्ड बना लेगी। जब वो बॉन्ड बना लेगी तो नेचुरली वो जगह ले लेगी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की। अब जो ईस्ट्रोजन ब्लड में घूम रहा है वो उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। कहां कहां पर है ये रिसेप्टर? ब्रेस्ट में, यूट्रस में, बोन्स में, ब्रेन में। क्योंकि वो वीक बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि वो ओरिजिनल ईस्ट्रोजन नहीं है, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो बॉडी में चेंजेस आने हैं, ब्रेस्ट, यूट्रस, बोन, ब्रेन में जो चेंजेस आने हैं, उसके कारण वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ये एक तरह से ब्लॉकर का काम करेगी। मगर यही देखो चीज दूसरी तरफ हेल्प करेगी। एक वक्त आएगा, स्पेशली जैसे मेनोपॉज, वहां पर ये कम हो जाएगा ईस्ट्रोजन। उस कंडीशन में ये क्या करेगी? ये फिर दोबारा से, क्योंकि अगर आप ये फाइटो एस्ट्रोजन डाइट लोगे तो ये वीक एस्ट्रोजन बॉन्ड बनाएगी रिसेप्टर्स के साथ जाके, तो ना होने से कुछ अच्छा। तो ये बिल्कुल तो स्ट्रांगली अटैच होके वैसे काम नहीं करेगी जैसे एस्ट्रोजन करना चाहिए, मगर कुछ कुछ करेगी। जब कुछ कुछ काम होने लगेगा, जो बेसिक चीजें हैं जो मेनोपॉज में आती है, जैसे हॉट फ्लशेस, बोन डेंसिटी में फर्क आ जाना, राइट, उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं और हाई मोटेलिटी रहती है फीमेल में,
आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि जो बोन की डेंसिटी उसमें चेंज आ जाती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ जाते हैं बेसिकली पेल्विस के, और पेल्विस के आने के बाद हाई मोर्टेलिटी रेट है वहां के, बहुत ध्यान देना चाहिए। तो वहां पर भी ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, फाइटोएस्ट्रोजन। तो कौन सी डाइट है जो फाइटोएस्ट्रोजन है? देखो, फॉर एग्जांपल सोया प्रोडक्ट्स, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन है। टोफू, सोया मिल्क, राइट। देन फ्लेक्स सीड्स, लेग्यूम्स, चिकपी, होल ग्रेन, फ्रूट्स लाइक बेरीज, एप्पल, पोमीग्रेनेट, और वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैरेट, स्पाइनेज, इन सब में है। तो आप अलग अलग डाइट बताओगे फाइब्रो एडिनोमा के लिए और फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा के लिए। जब आप फाइब्रो एडिनोमा के लिए बताओगे तो आप उसको बोलोगे कि तूने रेड मीट नहीं लेना है, तूने फुल डेयरी नहीं लेनी है। आप उसको बताओगे कि तूने फाइबर ज्यादा लेना है, फाइटोस्ट्रोजन फूड खाना है, तूने लिवर को सपोर्ट करनी है, अल्कोहल नहीं लेनी है, तूने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, टर्मरिक टाइप, गार्लिक, विटामिन सी, ये सारी चीजें लेनी है, फ्लेवोनॉइड्स, राइट, ये चीजें लेनी है। तूने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है वो लेनी है, तुझे कैफीन डिक्रीज करनी है, तुझे चॉकलेट लेनी है, तूने टी ले सकती है, ब्लैक टी, मगर अल्कोहल ही नहीं लेनी है, राइट। और वो डाइट लेनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। मगर अगर फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा है तो पहली चीज आपने उसको बोलनी है, रिड्यूस द कैफीन, कैफीन रिड्यूस करनी है उसकी। फिर आपने उसको बोलना है कि ऐसा फूड जो रिच इन आयोडीन है वो यूज करना है, आयोडाइज साल्ट यूज करना है, एग्स यूज करने हैं, सी फूड यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपने उसको बोलना है हाई इन विटामिन ई एंड मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम उसका स्लीप पैटर्न ठीक करेगा, उसकी बॉडी भी लूज करेगा, राइट, लाइक एलमंड, बनाना, पंपकिन सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स, राइट। वो ब्रेस्ट टेंडरनेस रिड्यूस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देके देखो पेशेंट को। उसके बाद क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा में हेल्प करेंगी। लो जीआई डाइट यहां भी काम करेगी, और एक्सेसिव हाइड्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो और कौन सी डाइट है फॉर एग्जांपल जो इफेक्ट करती है? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन डाइट, अब ये कौन सी होती है? अब ये क्या काम करती है? प्रो प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है और वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो ऐसी डाइट जो प्रोजेस्टेरॉन को पुश करे वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगी फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा। ब्रेस्ट टेंडरनेस रिड्यूस करेगी, स्वेलिंग डिक्रीज करेगी, और सिस्ट फॉर्मेशन भी डिक्रीज करेगी। अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन डाइट, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन बनता कहां से है? कोलेस्ट्रॉल से। सो हेंस हेल्दी फैट अगर आप पेशेंट को रेकमेंड करोगे, लेस, लाइक फॉर एग्जांपल नट्स, सीड्स, फ्लेक्स सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश लाइक सैल्मन्स, राइट, एवोकाडोस, ये हेल्प करेंगी उसको। एक तरह की प्रो प्रोजेस्टेरॉन डाइट। और B6 विटामिन ये रेगुलेट करता है लूटियल फेज को, तो इंक्रीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन को। जैसे बनाना, चिकपी, सनफ्लावर सीड्स, टूना, पोटैटोस, राइट, स्पाइनेच, ये काम करेगी। और उसके साथ आप उसको और सपोर्ट भी दे सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम लेने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम सपोर्ट करता है एड्रेनलिन ग्लैंड को, सो प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करता है। सो मैग्नीशियम किस में होता है? देखो, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, और मैग्नीशियम इज अदरवाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे लोग जो एंटासिड्स बहुत खाते हैं, जितने भी लोग एंटासिड्स खाते हैं उनमें मैग्नीशियम कम हो जाता है और उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और उनमें मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, वहां पर मैग्नीशियम सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी देना है मैग्नीशियम ग्लाइसेट देना है हमें, राइट। तो वेजिटेबल्स में क्या दे सकते हो सप्लीमेंट के अलावा? डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एलमंड्स, कैश्यूज, डार्क चॉकलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंपकिन सीड्स, 90% वाली डार्क चॉकलेट शुगर के लिए भी और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रोकली, गावा। देन जिंक, जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हम चीजों पे ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पर, राइट। ऑयस्टर हो गया, एग हो गया, चिक भी हो गया, उसको यूज कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बोला सीड्स देते हैं, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं पेशेंट्स को? अब चारों के चारों सीड जो है, जैसे फ्लेक्स सीड, पंपकिन, सनफ्लावर और तिल, सेंसे सीड जो होते हैं, उनको इकट्ठा ब्लेंड कर लो, जहां भिगो के रखो और उसको कर लो। सबसे बेटर क्या रहता है कि जो फॉलिकुलर फेज होती है, पहले 14 दिन होते हैं, वहां पर फ्लेक्स और पंपकिन बेटर काम करते हैं, वो ईस्ट्रोजन को पुश करते हैं। और जो लूटियल फेज है 15 to 28 डेज, उसमें सनफ्लावर और जो तिल होते हैं उनका रोल बहुत रहता है, राइट। और कौन से फूड नहीं लेने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए।
जैसे रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सप्रेस करते हैं ओवुलेशन को, राइट। हमने प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवुलेशन सप्रेस हो गई तो वो क्रिटिकल है प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड कार्ब्स बंद करें आप, ट्रांस फैट्स बंद करें, अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लिवर को, जैसे ही आप अल्कोहल लोगे तो क्या होएगा, वो सबसे पहले बॉडी उसको पिक करेगी, जो लिवर है उसको पिक करेगा कि कुछ टॉक्सिन आ गया है, और बाकी के अपने फंक्शंस को हॉल्ट कर देगा। सो ऐसे आप समझ सकते हो कि कैसे हम पेशेंट को दवा के अलावा, दवा तो देनी है, स्टेट तो समझनी है, जैसे मैंने अपने पेशेंट में भी समझा उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, कौन सी रेमेडी देनी मैंने, राइट। तो मैंने जो उसको रेमेडी दी, मैंने उसको रेमेडी दी, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी ओवरऑल स्टेट को जो समझा, उस स्टेट को समझने के बाद आई पिक रेमेडी फ्रॉम द रो 3, दैट इज मैग्नीशियम। और उसके साथ क्योंकि उसके ग्लैंड्स इफेक्टेड हैं, देयर इज वन मोर की नोट फॉर दैट, तो मैंने उसको मैग्नीशियम आयोड 1 mg दी उसको, राइट। एंड विद इन ए वीक वो सारी जो कंप्लेंट्स है ठीक होगी, अलॉन्ग विद दैट ऑल द डाइट मैंने जो आपको एक्सप्रेस की है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। वाइटल फोर्स और स्टेट ऑफ द पेशेंट का अपना रोल है, पर लाइफस्टाइल का अपना रोल है। आप बुरी डाइट खा के सिर्फ मेडिसिन के साथ, आजकल की दुनिया में जहां पर डिजीजेस मिक्स हो गई हैं, डिजीज के लाइफस्टाइल भी कनेक्ट हो गए, तो आप उसको कवर नहीं कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एप्पल की हाफ साइड फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन है, और दूसरी साइड उसकी मैनेजमेंट पार्ट है, आप मैनेजमेंट पार्ट पर भी उतना ही ध्यान दो। कोई क्वेश्चन? हेलो। 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 नमस्ते सर। सर सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे, सुन रहे। हाँ सर, एक्सेलेंट लेक्चर। जैसे क्लासरूम थैंक में यू मैडम। कॉलेज में बैठे हैं, वैसे फिर से सब रिफ्रेश हो गया। थैंक यू, और थैंक यू। सर ये सर ये जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रहते हैं, ये तो सर कुछ स्पेसिफिक पोटेंसीज रहती है, या वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एनर्जी एंड गिव? थैंक हाँ यू सर। हाँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू द केस मेरा पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले भी उसमें डिस्कस किया है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि फॉर एग्जांपल पेशेंट क्या दे रहा है, अगर चाहे मेलिग्नेंट कंडीशन है, पर मगर पेशेंट कीनोट सिम्टम्स दे रहा है, कंफर्मेटरी सिम्टम्स दे रहा है, इतने पेक्यूलियर सिम्टम दे रहा है जो उस रेमेडी के मेन क्रक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इन स्पाइट ऑफ ही सफरिंग फ्रॉम द कैंसर और द malignant कंडीशन, पेशेंट अपनी स्टेट बहुत अच्छे से दे रहा है, तो आई गो विद हाई पोटेंसी। अगर वो सिम्टम्स बहुत वेग दे रहा है, सिंपल दे रहा है, कंफर्मेटरी सिम्टम्स नहीं दे रहा है रेमेडी के, चाहे फिर वो जुकाम की कंडीशन है, चाहे बॉडी एक है, चाहे रोमेटिक कंडीशन है, चाहे कैंसर है, कुछ भी है, आई गो विद द लोअर पोटेंसीज। तो मेरा बिल्कुल फिक्स फंड है। मैंने एग्जांपल ये कितनी बार दिया है कि अगर सिर्फ बर्निंग मिचुरेशन है तो हम कंथेरिस 6 दे सकते हैं। बर्निंग मिचुरेशन बहुत इंटेंस हो गई है और उसको इरिटेशन हो रही है साथ में यहाँ पर पेट के नीचे, तो हम 30 दे सकते हैं। मगर बर्निंग मेच्योरेशन के साथ वो एक्साइटमेंट फील कर रही है ना, ये ज्यादा स्पेसिफिक की नोट है कंथेरिस का, कि एक्साइटमेंट इन द ऑल फंक्शंस अलोंग विद दैट बर्निंग मेच्योरेशन और इन एवरी कंडीशन, तो आई विल गो विद द कंथेरिस 200। अगर उसके साथ उसको ये लग रहा है कि बाहर से मेरे को ऐसे ऐसे कोई आवाज आ रही है, तो इसका मतलब और कंफर्मेटरी सिम्टम है, ये प्रूविंग का सिम्टम है। उसको ऐसे लगता है कि साउंड्स आ रही हैं, आई विल गो विद द 1M। अगर उसको लगता है ये साउंड्स अब बिल्कुल मेरे अराउंड आ गई है, इसका मतलब वो और भी पिक्यूलियर कंथेरिस का सिम्टम दे रही है, आई विल गो विद द 10M। और उसको लगता है कि मेरे बेड के नीचे से आवाज आ रही है, आई गो विद द 50M। अगर उसको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अब वो नीचे से एकदम से निकल के आएगा और मुझे होल्ड कर लेगा और उसके हाथ ठंडे होंगे, ये इतना पिक्यूलियर की नोट सिम्टम है, आप देखना, होल्ड विद आईसी कोल्ड हैंड, ये कैंथेरिस का की नोट सिम्टम है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम दे रहा है कि पेशेंट उस हैंड्स को फील भी कर पा रहा है जो कि कोल्ड है, सो आई विल गो विद द हाईएस्ट पोटेंसी फ्रॉम द सीएम। सो इट, ये डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी पैथोलॉजी क्या है, इट डिपेंड्स कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे बात कर रहा है।
अगर उसका इंस्ट्रूमेंट मींस बॉडी बहुत अच्छे से बात कर रहा है और बहुत डिटेल में बात कर रहा है, तो उसका मतलब आई हैव टू गो विद द हायर पोटेंसी। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर, थैंक यू सर, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चन? मानसी जी? जी सर। आपने ख्याल आज आप बिजी हो? नहीं नहीं, थोड़ा आज? लेक्चर था, आ गई मैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो मेरी तरफ से हो गया, टाइम भी हो गया। ओके। अगर कोई क्वेरीज हैं तो मुझे बताइए। किसी को कोई क्वेरी है तो अभी डाल दो, या फिर ग्रुप में डाल दो, या फिर अच्छा, ग्रुप में डाल सकते हैं, आई विल यूट्यूब आंसर पे इट। भी डाल सकते हैं अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो। थैंक्स सोना जी। अच्छा, एक चीज मैं बोलूं कुछ हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ आप रिगार्डिंग ऐड योर करें। रिगार्डिंग योर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पोटेंसी सर एक पोटेंसी एरिया टच किया है, नहीं मगर नहीं, आई एम टॉकिंग उसके अबाउट द बाहर पोटेंसी कितना कुछ है। जी जी, बोलिए सर, बोलिए पोटेंसी सर। पार्ट पोटेंसी पार्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पोटेंसी पार्ट थोड़ा ज्यादा। आई थिंक आई डोंट नो, गोइंग टू टेन वन। मेरा एक सिंपल फंडा ये है, देखो डॉक्टर हनुमान ने क्या, व्हाट इज होम्योपैथी इज प्रूविंग एंड सेम एनर्जी लेवल, आई मीन द सेम, क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं वेवलेंथ, एंड देन सेम स्टिमुलस सिमिलर स्टिमुलस, सेम टाइप ऑफ क्या कहते हैं उसको, जो भी है एनर्जी का जो भी है ना, तो इक्वल टू दैट इट इज फाउंड इन द सिम्टम्स, राइट। सो उसका इक्वल अगर पेशेंट में है, अब यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंसेशंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। मैक्सिमम रुब्रिक्स जो अपने को 4 मार्क्स के दिखते हैं, 5 मार्क्स का दिखता है सपोजिंग में, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज, उसका मतलब कैसा होता है ना कि वो एक पेशेंट में इंटेंसली नहीं दिखा है, वो मैक्सिमम सभी पेशेंट में। में दिखा हुआ है ना, मैक्सिमम लेट्स से। बट वो जो प्रूविंग हुआ है ना, दैट हैज हैपेंड इन 6, 12, 30। हम्म So what I believe is, if you give these potencies also na, that thing is taken care of. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा, इसीलिए then that is why I don't prefer going to 10M, 50M, CM so early. So early. So you are my small brother, that's why I can tell you. Try यस that. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि सर इसका दूसरी साइड भी है जो आप बोल रहे हैं ना, इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है कि बेसिकली अगर 12 प्रेगनेंट जो सिम्टम है, वो अगर किसी को बहुत स्ट्रांग सिम्टम दे रही है, ये भी वही एक्सप्रेस कर रहा है कि उस पेशेंट में बहुत स्ट्रांग ससेप्टिबिलिटी है उस प्रूवर में। सभी प्रूवर में कई बार नहीं आती, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, और दूसरी बात क्या है ना, ससेप्टिबिलिटी ये बहुत रिलेटिव मैटर है। ये मतलब इट इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ कॉन्सेप्ट, ससेप्टिबिलिटी इज अ जी कॉन्सेप्ट। सर, बिल्कुल। इट इज नॉट इवन अ थियरी, हम्म। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। जी सर, तो जी अभी सर। भी वो कंसेप्शन फेज में अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। उसको लेकर के अगर, हाँ, कॉन्सेप्ट इज हम्म, विच इज कंसीव्ड है स्टिल बिल्कुल इन द बिल्कुल सेम, बिल्कुल। है ना, इसके लिए इसलिए उसको कॉन्सेप्ट है, तो स्टिल जी नॉट सर, डिलीवर्ड, स्टिल नॉट प्रूवन। तो थोड़ा सा हम लोग क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग थोड़े से ऑकल्ट वाले हैं, जी है सर, ना, तो हम लोग थोड़ा उसको ओवर स्टेज कर देते हैं, तो देन वी जी सर, जी सर। indulge into 1M, 10M, 50M, which जी सर, जी I सर। believe could be avoided. बिल्कुल बिल्कुल सर। Because psychiatric इसमें cases में भी, Yogi, I हाँ have हाँ seen 6 potency working the best बिल्कुल बिल्कुल than 10M, 50M. सर। इसमें पता है क्या, मैं ये भी देखता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर निकम है, वो सिर्फ 30 यूज करते हैं। I mean, ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर हेरिंग को देखोगे आप, उनके नोट्स देखोगे जहाँ हाँ उनकी बात है नैश की, तो उनकी जो वो इमरजेंसी किट थी उसमें सारी रेमेडी सीएम में होती थी। हाँ, तो सबके हाथ की भी सेटिंग है सर, विश्वास की भी सेटिंग है, बहुत चीजें हैं यहाँ पर जो काम करती हैं। वो कई बार मुझे भी बोरिक लगता है साहब तो कि फ्री में यूज करते थे, बोरिक जी was सर, in जी 3 सर, and जी सर। 6, यस सर, जबकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली इन केसेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल। यस 3 सर, and 6 यस। are wonderful. जी सर। Anyways, शायद क्या होता है ना, वो जैसे डॉक्टर विजयकर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जिस तरीके की एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हैं ना, उस टाइप की केसेस आपके पास अट्रैक्ट होती बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली है ना, सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना, वो बहुत सही लगता है मुझको। एनीवेज, बिल्कुल बिल्कुल।
May Buddha be with you. जी सर. So can I share something? Is Yeah, it yeah, okay? Mita. Yes, हाँ, Mita, please. यस सर. सर ये जो सर ने आज एक केस बताया ना कि पेशेंट की बेटी हॉस्टल गई एंड पेशेंट डेवलप, द सेम थिंग हैज हैपेंड विथ मी. माय मदर डेवलप्ड fibroadenoma 40 years back when I got admission in homeopathy college and I had to go to hospital. तो आज 40 साल के बाद I am able to connect the dots कि क्यों हुआ था वो. And yesterday I got a patient of fibroadenoma, a 76 Wow. years old lady. और आज So you मैंने share ये the fees with. लेक्चर सुने. So you share a part of fees with Dr. Yogesh now. हाँ सर, अभी मुझे वो केस लेनी है. They have just sent the reports. मैं देखूं. After I Sure, take the sure. case, I will share with you. Thank you, sir. Sure, ma'am. Sure, No, sure. no, you Okay, share ma'am. the fees with Dr. Yogesh as a royalty. Yeah, yes, sir. Definitely. Thank you, sir. That will be a sign of आधा आधा gratitude. 50-50. हाँ, जो exactly. Sure, sir. जितनी योगी की भूख है उतना दे देना. फिर तो सारा ले जाएंगे सर. मैं उनको पूरा मांग लेता मैं. नहीं, very nice, Mita. With due respect to you, बेटा, just because हम लोग थोड़े से क्या है ना, पंजाबी, मैं 90% पंजाबी, योगी 100% पंजाबी, तो वो हम लोग थोड़े से ऐसे प्रिविलेज हो जाते हैं बेटा. Please don't mind, Mita. Yes, sir. सर ऐसे तो मुझे बहुत सारा पैसा आपको देना है पेशेंट के फीस. अरे नहीं जान, तू तो प्यार देती, मेरी बेटी है तू. प्यार Thank के you, बदले sir. थोड़ी ना, प्यार के बदले थोड़ी ना. Where is the conclude? हाँ. As we come to the end of this insightful webinar, it is my privilege to propose the vote of thanks. On behalf of PHF, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Yogesh Malhotra, for sharing such valuable knowledge, practical insights, and clinical experience with us today. Thank you, sir, for taking time to enlighten us with your wisdom. Each of your lectures is unique and memorable. I sincerely thank Liaquat sir and all the mentors of PHF whose efforts made this webinar successful. I would also like to thank all the participants for your enthusiastic presence, active listening, and interaction throughout the webinar. Thank you once again. See you back next Thursday. Have a very good evening. Yeah, one more thing, Yogi, do you take classes? You can tell about the classes in the lecture. हाँ सर, मैं डाल दूंगा ग्रुप में सर. हाँ, प्लीज डाल देना. श्योर 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 श्योर. Okay. Bye. God bless you. बाय सर. बाय सर. बाय. Thank you, sir. ओके मैम.